ناظرین، پی ٹی آئی نے اعلان تو بظاہر طور پہ کر دیا ہے کہ تحفظ آئین تحریک کا وہ باضابطہ طور پر ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے اور اس پہ اب احتجاج بھی ہوگا اور یہ ملکی احتجاج اور یہ ساری چیزیں. دیکھیے دوسری طرف ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. بھرپور کوشش ہے کہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہو جائے. اس وقت مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ مجھ سے ملنے تو آتے ہیں لیکن ہماری ان سے کوئی معاہدہ یا کوئی ایسا الائنس اس لیے نہیں بن پا رہا کہ ان کے اندر ابھی یکسوئی نہیں ہے. اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی شکایت اگر ان کی ہے وہ درست ہے، لیکن آج بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کا یہ دعویٰ کہ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دے گی، تحریک چلائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اسمبلیز میں ان کی ممبرز ہیں، نیشنل اسمبلی ہو گئی، پنجاب اسمبلی ہو گئی، سندھ اسمبلی ہو گئی، وہاں سے بھی وہ استعفے دے کے باہر نکل آئیں گے، جس کو ڈینائی کیا ہے فی الحال بیرسٹر گوہر صاحب نے اور اس پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے. لیکن پہلے ذرا سنتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا رہے ہیں. میں پورے ملک کے الیکشن کی بات کرتا ہوں بشمول خیبر پختونخوا کے، مینڈیٹ وہاں بھی نہیں ہے. ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت کے پی میں ہے تب بھی وہ استعفوں کی بات پہ آ گئے ہیں اور کا بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نئے الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلی تحلیل کر دی جائے. جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی. پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ سوچیں کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان 10-12 سال تلخ تعلقات رہے ہیں. ان کو صرف نارملائز کرنا ہے، تعلقات کو ایک معمول پر لانا، کاف بھی ہو لیکن اس میں جو شدت ہے، جو جمعیت علماء اسلام کے تحفظات تھے، ہم نے جس وجہ سے ان سے اختلاف رائے کیا تھا، ان تحفظات کو دور کیا جائے اور اس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کر لی ہے. اچھا، مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا لیکن اس کی فوری طور پر تردید کی ہے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسمبلیاں چھوڑنے سے متعلق مولانا کے بیان ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے مولانا صاحب سے کہ ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑیں، اور نہ ہی دیگر اسمبلی سے استعفے دینے سے متعلق کوئی بات ہوئی ہے. اس زمن میں نہ مولانا سے مشاورت ہوئی نہ ہی ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے. لیکن یہ بڑا الارمنگ ہے کہ کوئی اگر بات نہیں ہے تو پھر مولانا صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے، اور اگر مولانا صاحب نے ایسی کوئی بات نہ ہوتے ہوئے یہ بات کی ہے تو یہ کسی قسم کا الائنس بن کیسے سکتا ہے جب شروعات میں ہی اتنی آپس میں غلط فہمیاں ہیں. لیکن آگے چلتے پی ایم ایل این حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگا دیا جائے. پیپلز پارٹی نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہے ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن جمہوریت میں رہتے ہوئے کریں. اس کا کیا مطلب ہے، کیا نیم رضامندی ہے، اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے. لیکن عطا تارڑ صاحب جو بنو کا واقعہ ہوا ہے اس کو بھی لے کر ایک دفعہ پھر دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے کی پی ٹی آئی کو کوشش کر رہے ہیں. جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں. آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کا حق نہیں ہے، آپ ایک دہشت گرد جماعت ہیں. جب آپ دہشت گردوں کو لا کے بسائیں ملک کے اندر اور کہیں کہ جی میں ان کو لا رہا ہوں، اسی لیے آپ کو طالبان خان کہا جاتا تھا. بنو میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا. ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے، تحریک انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے. جہاں پہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی، اور جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی اور 22 لوگ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے ہیں، وہ اس دیوار سے 1 کلومیٹر دور واقعہ ہوا. یہ جو لاشوں کی تلاش ہے یہ 2014 سے جاری ہے. کوشش یہ تھی کہ یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سویلین پہ فائر ہو گیا. بحیثیت اپوزیشن یا بحیثیت ایک اپوننٹ پارٹی یعنی پولیٹیکل رائیول کسی پہ الزام لگانا تو بہت آسان ہے اور یہ ہمارے سیاست کا شیوا بھی ہے. لیکن اگر آپ واقعی کسی جماعت کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا ہے اور اس پر پابندی لگوانا ہے تو جو آپ کے الزامات ہیں ان کے ثبوت بھی آپ کو پیش کرنا ہوں گے. اسد قیصر صاحب جو کہ اب معاملہ ہے جو 12 جولائی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ریزرو سیٹس کو لے کر، اسد قیصر صاحب ایک دفعہ پھر میدان میں، اور اصل جو کہتے ہیں نا کہ جو اصل جڑ ہے فساد کی وہ یہی فیصلہ ہے، کیونکہ اس کے بعد ہی حکومت کی پریشانیوں میں شدید قسم کا اضافہ ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ کنٹرول میں تو نہیں آ رہی، ان پہ پابندی لگا دو. اسد قیصر صاحب اپنے ممبرز کے حوالے سے کچھ تشویش کا اظہار کر رہے تھے، سنیے ذرا. ملک جو ہے نا میں آگ خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں. ایم این ایس کی خرید فروخت کے لیے بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں، ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کے اوپر پریشر لایا جاتا ہے کہ وہ اپنی لائلٹی ہے، وفاداری وہ چینج کرے. انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب نے ان سے جواب مانگا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ کن نمبر سے کال آ رہی ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟
कैसर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई को बताएं, तफसीलात तो कोई नहीं है ना, हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर केपी फॉर फाइनेंस, इसके साथ साथ सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के तैमूर सलीम झगड़ा साहब। रजा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। दोनों शख्सियात को बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वैसे तो JUI की और जो PTI की नामजद कमेटी है उसका इजलास जो अभी तक की इतलात है वो अभी तक चल रहा है, अब उसमें भी यकीनन ये बात तय होगी। लेकिन तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो कि मौलाना साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि दो चीज़ों पे इत्तेफाक हो गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो डिसॉल्व करेंगे और सड़कों पर आएंगे। उसके अलावा जो दीगर असेंबलीज हैं इंक्लूडिंग पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबलीज, उनसे भी इस्तीफे देंगे, बाहर आएंगे और फिर एक तहरीक चलाएंगे। ये बात हुई है, नहीं हुई है, और नहीं हुई है तो मौलाना साहब ने कैसे ये बात कर दी? नहीं, देखिए, इसका मैं बड़ा सिंपल और ब्रीफ जवाब दूंगा। ये बात PTI की तरफ से तो नहीं हुई, ये तो असद कैसर साहब ने भी डिनाई किया और मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौर ने भी इस पे बयान दिया था। मौलाना साहब ने क्यों कहा है, क्यों नहीं कहा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और ना मैं इस पे नादिया ज्यादा डिटेल में इसलिए बात करूंगा क्योंकि जो हमारे उनके साथ एंगेजमेंट है वो कोई इलेक्टोरल अलायंस पे नहीं है, वो रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे है। आज कल सुबह से रात तक हमें नहीं पता होता कि सुबह कौन अगवा होगा, रात को कौन अगवा होगा, हुकूमत किस वक्त कहेगी कि किसी पार्टी को बैन करना है, किस वक्त जो है वो जुडिशरी के कमरों में कैमरे लगाएगी। जो हो रहा है सबके सामने है। आपको फिलहाल जो है वो एक बनु जैसे इंसिडेंट पे, वो आपकी अपनी बात सही है, बट माई पॉइंट इज कि अगर एक इत्तेहाद बनने से पहले इस किस्म की गलत फहमियां हैं कि इतना बड़ा बयान मौलाना साहब दे रहे हैं और दूसरी तरफ से इसका टोटली डिनायल आ रहा है असद कैसर की साहब की जानिब से भी, बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से भी, तो ये कोई इत्तेहाद कैसे फिर बन सकता है? सही क्या हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स। नादिया, ये बड़ा इशू ही नहीं है। अगर बड़ा इशू आपने देखना है, अच्छा चले उनकी बात छोड़ देते हैं। सॉरी, मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। क्या मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, छोड़े JUI को। क्या PTI किसी मौके पर ये बात डिस्कस हुई है कि हमें असेंबली से एक दफा फिर बाहर आ जाना चाहिए, सड़कों पर जाना चाहिए, तहरीक चलाना चाहिए? सड़कों पे तहरीक बिल्कुल डिस्कस हुई है। असेंबली से बाहर जाना इसलिए नहीं डिस्कस हुई कि ये फिलहाल जो है वो गवर्नमेंट को सूट करता है, वो तो पहले से ही चाहते। देखें, वो तो जो है वो आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच पे एक अटैक शुरू कर दिया एक दिन पहले, जब वो कह रहे थे कि अगर फैसला ऐसे आया तो आप देखेंगे कि हम में और PTI में फर्क ये है कि हम फैसलों को मानते हैं, PTI नहीं मानते। मरियम से लेके तारड़ तक, ख्वाजा आसिफ, सारे जो है वो जुडिशरी पे अटैक्स कर रहे हैं। डायरेक्ट ब्लेटेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंटरफेरेंस है, और साथ मार्शल लॉ की बातें करना शुरू कर गए। क्यों? अच्छा, ये सारी बातें होती है बनु जैसे वाक़े पे, लेकिन ये ज़ेरे बहस भी नहीं आया कि पार्लियामेंट से एक दफा नेशनल असेंबली से बाहर निकल जाएं या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ दें या डिसॉल्व कर दें। नहीं, आई डोंट थिंक दिस इज ऑन द कार्ड्स, बिकॉज़ नादिया, इस पे एक बात मैं कह दूं, ये फिलहाल हम क्यों तोड़ें, क्यों बाहर जाएं, जब नेशनल असेंबली में हमारी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट अकॉर्डिंग टू PTI, अकॉर्डिंग टू एनी इंडिपेंडेंट ऑडिट्स। और KP में 115 में से 93 सीटें पे हम नोटिफाई हुए हैं। 14 सीटें हमने, मैं आपको साबित कर सकता हूँ, प्रोग्राम करें कि 14 सीटें हम और जीते। चले रजा हारून साहब, इसमें अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें या नहीं करना चाहें, आप ऑन योर कॉल, कि मौलाना साहब ने अगर ये बात की है तो कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, और PTI का तो टोटली डिनायल आया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई बात, कोई दानिशमंदाना फैसला हो सकती है इनकी जानिब से? अच्छा, ये तो बहरहाल खुद ही फैसला होगा PTI का कि दानिशमंदाना है कि नहीं। लेकिन जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब का बयान है, और जितना मैं उनकी शख्सियत को जानता हूँ, वो कम से कम ऐसा बयान जो है ना वो हवा में आके नहीं दे सकते, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बात की है। कोई ढके छुपे लफ्ज़ में बातें, हो सकता है कि ज़ाहिर है जब बंद कमरे में मुलाकातें होती हैं, डिस्कशन होती है, डिस्कशन में ये बात है, ये ज़ाहिर है नए इलेक्शंस कैसे होंगे। नए इलेक्शन की अगर बात हुई है, जो खान साहब ने भी एक मौके पे अभी फरमाया है कि नए इलेक्शन हो जाने चाहिए, मौलाना भी चाहते हैं कि नए इलेक्शन हो, PTI की भी ख्वाहिश कहीं ना कहीं ये है, उनके बयान में आए नए इलेक्शन, तो नए इलेक्शन मौलाना ये
यही कह रहे थे कि जो गुफ्तगू बात हुई होगी कि भाई अगर और लोग इस्तीफा देंगे तो पीटीआई भी तैयार है इस्तीफा देने पे, तो मैं मौलाना साहब की बात को यकीन करता हूँ। वो सीरक सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, उनसे जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं, एहतराम के साथ असद कैसर साहब हो गया, बैरिस्टर गौर साहब, इनका एक्सपीरियंस का वो लेवल नहीं है तजुर्बे का जो फजल रहमान साहब का है। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएशन में, बातचीत में गलती हो गई होगी, ऐसे जुमले निकल आते हैं डिस्कशन के दौरान, हो सकता है फाइनल ना हुआ हो, लेकिन आई विल टेक मौलाना साहब ऑन हिज वर्ड्स कि वो गलत बयानी से काम नहीं करते। अब मुझे ये बता दीजिए कि पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा था कि जी अगर इन पे पाबंदी आपने लगानी है, लेकिन चलें जी थोड़ा जमहूरी तरीका हो, आईनी तरीका हो, हम जो है वो तरीके अदब एतमाद वाला टाइप का कोई तरीका हो, लेकिन बात वही है कि जाहिर सी बात है फुल जब तक कहीं से आशीर्वाद नहीं होती, कहीं से मामलात की यकीन दहानियाँ नहीं कराई जाती, तो ऐसे मामलात नहीं होते। पीपल्स पार्टी की राय क्या है उनके अंदर कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाए? जी, ये तो बिल्कुल हमारे दोस्तों को पता है पीटीआई के जब तक कहीं से मामलात ना हो ऐसी बात नहीं की जाती, और आपको भी जाहिर है कि इस बात का तजुर्बा है। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप ने बात की है, और बड़ी कल बयान भी आया है कि ये दोनों आरा जो हैं हुकूमत की, एक तो है आर्टिकल 6 के हवाले से, और एक है इस सियासी तंजीम पे पाबंदी लगाने के हवाले से जो बयान की। ये दोनों पीटीआई की जो मरकजी मजलिस आमला सीईसी है वहां पे डिस्कस होगी, और पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होगी, और उन्होंने एक बात और की है कि इस मसले को पार्लियामान में भी डिस्कस किया जाए, उसके बाद कोई फैसला होगा। तो उन्होंने ये वाइडर इसका फोरम वाइडर करके इस पे कंसेंसस डेवलप करने की बात की है। जहां तक बात है अच्छा रज़ा हारून साहब, सॉरी मैं आपकी बात को यहाँ पे इंटरवीन कर रही हूँ, मुझे एक बात तो बताइएगा। अभी फैसल वाडा का एक बड़ा स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि पीटीआई की हैसियत जो है वो एमक्यूएम जैसी हो जाएगी। एमक्यूएम में तो आपने बड़ा वक्त गुजारा है, एमक्यूएम के सारे नशेबो फराज से आप वाकिफ हैं, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या आप जो कुछ एमक्यूएम में हुआ और जो पोजीशन पर एमक्यूएम की हुई या की गई उसको आप आज जस्टिफाई कर सकते हैं? दुरुस्त हुआ एमक्यूएम के साथ? देखिए एमक्यूएम अब दो है ना, एक एमक्यूएम लंदन है जो नहीं एमक्यूएम लंदन तो बाद में, एमक्यूएम जो दो बनी, मैं दो बनने की तो बात कर रही हूँ, उससे पहले के जो चीजें होती रही और जिस वजूहात की बिना पर दो बनी और फिर जो कुछ हुआ, आप जस्टिफाई करते हैं कि वो दुरुस्त हुआ था एमक्यूएम के साथ? मैं उसमें समझता हूँ कि उसमें बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं दोनों तरफ। एमक्यूएम की लीडरशिप की भी गलतियां हैं, और कुछ हमारे दोस्तों ने भी जल्दी करी। एमक्यूएम की लीडरशिप की ये गलतियां हैं कि उन्होंने सही वक्त पे सही फैसले नहीं किए, अपना मोडस ऑपरेंडाई चेंज नहीं किया, अपने आप को कौमी धारे में लाने के लिए जो कुछ वो कर रहे थे वो 10 कदम आगे जाके 20 कदम पीछे चले गए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ा डिस्कशन है ये एक इतना इजी नहीं है नादिया कि मैं बड़ा डिस्कशन है, लेकिन क्या एमक्यूएम के साथ सही हुआ? लेकिन नहीं, सही और गलत का फैसला तो तारीख करेगी ना, अवाम करते हैं। सही और गलत का फैसला मैं तो नहीं कर सकते, जैसे अवाम ने फैसला किया। कर सकते सर, आप कर सकते हैं, आप उसमें रहे हैं, एक लंबा अरसा आपने गुजारा है, बट अगर दोबारा से ये एग्जांपल दी जाए कि आप आज एमक्यूएम में होते तो भी यही बात करते। मेरे 35-36 साल है एमक्यूएम में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो एमक्यूएम की टूट फूट हुई उसमें एमक्यूएम की लीडरशिप और बानी ज्यादा कसूरवार है। ठीक है, तो यानी वो उससे जो आप इल्जाम देते थे कि जी देखिए ना इमरान खान को पता नहीं क्या मसला है, ब्रीफ केस ले लेके जाते हैं, हम पे पाबंदी लगाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो यानी एमक्यूएम वाज गलत, एमक्यूएम ही थी, खान साहब गलत नहीं थे? नहीं, खान साहब जिस वक्त वो इल्जाम लेकर आए थे ना सूटकेस भर भर के, तो वो सूटकेस में जो इल्जाम थे उस वक्त एमक्यूएम ज़ेरे अताब थी। आप मेरे ख्याल में बात कर रही हैं 90s, लेट 90s। मैं तो थ्रू आउट बात कर रही हूँ सर, मैं पिक एंड चूज नहीं कर रही। थ्रू आउट नहीं था, खान साहब 90s के लेट 90s में, उसके बाद नहीं है। और जब वो आए थे तो होम ऑफिस भी गए थे, हाउस ऑफ कॉमन्स भी गए थे, 2 सूटकेस लाए थे वो भर के, और उन सूटकेस में सिर्फ रद्दी के टोकरे थे, वो रद्दी भरी हुई थी, और वो जहां रद्दी उन्होंने जमा कराई, रद्दी का जवाब जो उनको मिलना था वो सारी डस्टबिन में गई और उनको जवाब दे दिया गया। तो वो सबूत, तो वो जो पाबंदी लगाए, वो पाबंदी, अच्छा एक बात देखें ना, वो पाबंदी लगाने के लिए कभी पाकिस्तान में कोई रुजू नहीं किया उन्होंने, वो लंदन आ गए थे। तो पार्टियों पे पाबंदी लगाना कोई अच्छी चीज नहीं होती है सियासी जमातों पर। हाँ, सियासी जमातों में कुछ लोग अगर ऐसे हों जो कि हमारा आर्टिकल 17 भी कहता है कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रहे हो तो उन लोगों को अलहदा किया जाए, और उन लोगों को अलहदा इल्जाम लगाने से सिर्फ नहीं होगा, वो इल्जाम लगाकर सबूत और शवाहिद की बुनियाद पर उन पे जब तक वो साबित ना हो जाए, जब तक आप पाबंदी नहीं लगा सकते। और ठीक है, नज़ीर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। एक 17 जमाना दो था में बस आपसे end कर तैमूर दूं। चगड़ा साहब, चूंकि मुझे वो याद आ गया जब फैसल वादा ने ये बात की कि जी पीटीआई का हाल जो है वो एमक्यूएम जैसा होगा, इसलिए मैंने रजा हारून से ये सवाल कर लिया और मुझे वो तमाम चीजें आ गई कि उस वक्त इमरान खान बड़े पेश पेश होते थे, कभी वो जिंदा लाशें कहते थे, कभी वो कुछ कहते थे, कभी वो कुछ कहते थे। आज पता चला कि मामला किस तरह होते हैं और किस तरह से कोशिश की जाती है, कब किसी कोई लाडला होता है, कब की जो है वो सुतेला हो जाता है और फिर उसको किस तरह से क्या किया जाता है। आज रियलाइजेशन है आपको? नादिया, मुझे सियासत में 6 साल हो गए, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव बीन फॉलोइंग पॉलिटिक्स फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। और आपने जो है वो टीवी के लिहाज से सवाल किया, आई विल मेक इट स्लाइटली मोर सीरियस। जहाँ तक फैसल वावडा के बयान की बात है, आई थिंक कि फैसल वावडा जैसे लोगों के बयानात को हमें ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोग पीटीआई में भी रहे, ऐसे लोग बाकी पार्टीज में भी रहे। वी नीड पॉलिटिशियंस हु आर ट्रू टू पॉलिटिक्स हर पार्टी में, तभी जो है वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर होगा। माजरत के साथ फैसल वावडा को मैं उन लोगों में से विद ड्यू रिस्पेक्ट नहीं समझता। जहाँ तक ये बात है कि हम एमक्यूएम से कोई सबक सीखें या ना सीखें, नहीं, ये बात नहीं है कि हमें समझ आई। जैसे रजा भाई ने कहा, अगर एमक्यूएम की तारीख भी देख लें, देयर इज प्लेंटी दैट एमक्यूएम हैज टू होल्ड अकाउंट फॉर। मिसाल के तौर पे जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, 2007-8 की जो जुडिशल मूवमेंट थी, उसमें एमक्यूएम का एक बड़ा नेगेटिव रोल था। बहुत से काम एमक्यूएम ने किए होंगे जो कि गलत थे, और रिएक्शन में बहुत से काम स्टेट ने भी किए होंगे जो गलत हैं। इट्स टाइम टू स्टॉप ऑल ऑफ दैट। पीटीआई की एमक्यूएम के साथ कंपैरिजन नहीं की। एक लास्ट चीज, वो तो फैसल वादा वाली बात आई तो मैंने कहा जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट तैमूर सलीम चगड़ा साहब, आप मुझे बताएगा कि ये जब आपकी प्लानिंग्स हैं, हुकूमत ने कहा है कि आप पर बैन लगा देंगे, खबर ये भी आ रही है कि चाहे तौहीन अदालत हो जाए, जो रिजर्व सीट का मामला है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने फर्स्ट लाइन में कहा है कि जी अमल दरामद करेंगे, लेकिन साथ ही अपनी लीगल टीम को कहा है कि जी आप नुकात ढूंढें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये दाल इतनी आसानी से गलती हमें नजर नहीं आ रही। क्या करने जा रहे हैं आप? हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद इम्प्लीमेंट ना करे, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट ना करे, फिर कहते हैं गलती पीटीआई की है। अगर पाकिस्तान का निज़ाम इसको पहुंच गया तो मेरे ख्याल में इसलिए तो जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि टीवी के नैरेटिव को बनाने की कोशिश की जाती है, एक्स सेंसर हो जाता है। आज पूरा इंटरनेट ऐसे हो गया है जैसे 1995-96 में डायल अप इंटरनेट का ज़माना होता था, और जब आप इंटरनेट पे जाते थे तो वो एक चूं चां की आवाज़ आती थी और एक तस्वीर अपलोड होने में 2-2, 3-3 मिनट लगते थे। ये सारा कुछ दबाने के बाद भी अवाम जो है ये फेक नैरेटिव्स नहीं मान रही। आपने 3 बातें की। जहां तक पीटीआई को बैन करने की बात है, नहीं बैन कर सकते पीटीआई को, और हमें तारीख बताती है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने की कोशिश की जा, ये तभी होती है जब स्टेट्स डेस्परेशन में होती है। अवामी लीग की मिसाल है लेट 60s में, और उसका हमने अंजाम भी देखा जब उस पे आर्टिकल 6 लगाने की शेख मुजीब पे कोशिश की गई, वो वापस भी ली गई, बट अनफॉर्चुनेटली द डाई वाज कास्ट। नैप जो बाद में एएनपी बनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भुट्टो साहब का जमाना था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो करते थे, नैप को उन्होंने बैन किया। उसके बाद भी 2 साल बाद जब भुट्टो साहब ने अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन खत्म करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली जो उसका रिजल्ट हुआ कि उनको बड़े गलत तरीके से पाकिस्तानी स्टेट ने निकाला, जिसकी आज तक तनकीद हो जाती है, बल्कि उनको पीपल्स पार्टी को 45 साल बाद वो थोड़ा सा जस्टिस मिला। तो क्या करेंगे आप इमरान खान को या पीटीआई को बैन करके? वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हमें सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है, आपकी जनरेशन है, और जो नौजवान पाकिस्तानी है, एवरेज पाकिस्तानी की उम्र 21 साल है, उन्हें ये पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें फैसल वावडा बयान दे रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार है, एमक्यूएम का जो 30 साल जो रोल रहा था वो हो, या पीपल्स पार्टी बात जमहूरियत की करे लेकिन सपोर्ट करे उन पार्टीज को जो कि किसी और पार्टी को, पॉलिटिकल फोर्स को बैन करना चाहे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनसे वो इलेक्शन हारे और कि वो चीज कोर्ट्स में खुल जाएगी। यहाँ पे वक्त हो एक और ब्रेक का, वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो। रजा हारून साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि पीपल्स पार्टी वो जमात है। खैर चले पुरानी बातें भी छोड़ दीजिए। पूरी जो इलेक्शन कैंपेन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान लाडले होते थे तो नवाज शरीफ जो है वो लाडला प्लस है। इमरान खान से बैठने में आपको आर था कि जी वो तो इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है, और जो सिलेक्टेड प्लस है उनकी हुकूमत को आप बैठे हुए यहाँ पर स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा तजाद तो यही है। नादिया, असेंबली में जब पार्लियामेंट में जाते हैं और जो पार्लियामेंट के नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के अंदर ही जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है। और आपको याद होगा इस इलेक्शन में, हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल रहे रिजल्ट, हम सब मानते हैं इस बात को, कोई कम मानता है कोई ज्यादा मानता है, शिकायत सबको है, लेकिन उसके बावजूद जब वो नंबर्स असेंबली में आ गए तो आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने, चेयरमैन साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने भी पहली ऑफर पीटीआई को ही की थी ना। तो पीटीआई किसने की थी? ये तो हम कहते की थी, वो तो कहते हमने नहीं की थी। नहीं, वो ये कहते हमने मानी नहीं ना। नहीं, ये तो वही मानते हैं, वो नहीं मानते। नहीं सर, अभी मैं जिससे भी मैं बात करती हूँ, चाहे कायरा साहब से बात करें, नैयर बुखारी साहब से बात करें, हमने कोई नहीं की थी, हमने कोई इनको ऑफर नहीं की थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि की थी, आप खुद पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, ऑफर से मुराद ये नहीं होता कि किसी ने कॉल की हो। मैं कह रहा हूँ कि चूंकि नंबर 1 वो थी, तो बिलावल साहब का बयान ये था कि भाई आप नंबर 1 है, आप आगे गवर्नमेंट बना लें, करें, कोशिश करें, नंबर पूरे करें। नहीं सर, ऑफर करना क्या मतलब? पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर हुकूमत बना लेगी? नहीं, जो नंबर 1 पार्टी थी जिसकी ये मेजोरिटी थी, उसको ये बात की गई कि भाई ठीक है, हम कोalition नहीं बनाते, आप बना लें, आप ट्राई कर लें। नंबर तो उनके पास भी नहीं थे ना उस वक्त पूरे, तो उन्होंने माजरत की, उन्होंने नहीं बनाई, फैसला किया हम अपोजिशन बैठेंगे। तो फिर नंबर 2 चॉइस जो थी वो यही रह गई थी कि जो नंबर 2 पार्टी है वो कोalition बनाने की कोशिश करे, उन्होंने बना ली, वो कामयाब हो गए। तो ये इतना सिंपल है, मैथमेटिक्स अरिथमेटिक का प्लस माइनस का बात है। इसमें कोई पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड के बाद सिलेक्टेड प्लस को कामयाब कराया, ये क्रेडिट आपको जाता है, ये बैगेज आपके साथ। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे नंबर्स के बगैर गवर्नमेंट बनती नहीं, ना ये बनती, ना से पहले पीडीएम बनती। इसी तरीके से अगर आपको याद होगा 2018 में जिन लोगों के साथ मिलकर पीटीआई ने गवर्नमेंट बनाई थी, वो आज उनके साथ नहीं है। तो ये तो चलता है, ये तो होता रहता है सियासत में। जब एक दफा इलेक्शन हो जाए नादिया साहिबा, तो फिर पार्लियामेंट में जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स की प्लस माइनस से गवर्नमेंट्स बनती हैं, हाउस बनता है और अपोजिशन बनती है। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें तो कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, तैमूर चकला साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। तो जिस वक्त इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो है बिजली के बिल। अभी बल्कि मैं एक ब्रेक लेती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मैंने कहा जी PMLN की हुकूमत है, कुछ ना कुछ यकीनन बेहतरी हुई होगी, क्या पंजाब के अवाम खुश हैं? उन्होंने कहा कि जी हमें पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें इससे गर्ज है कि हमारा जो महंगाई है वो इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रही है। दूसरा जो हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जितनी हमारी तनख्वाहें हैं उतना हमारा बिजली का बिल आता है। तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस सूबे में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका जिंदगी और मौत का मसला बन चुका है। उसकी जो असल जिम्मेदार है वो IPPs के साथ मुआहदे हैं। ब्रेक के बाद जरा वापस आते हैं और जरा सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह से अवाम की खून पसीने की कमाई को निचोड़ा जा रहा है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि जो इस वक्त असल जो इस वक्त तमाम का मसला है वो है बिजली के बिल। और एक एक महीने में 3-3 दफ़ा अगर कीमतें बढ़ेंगी और जिस हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी, लोगों की इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने उनके बिजली के बिल आ रहे हैं। दूसरा मामला है कि IPPs जो असल वजूहात है, मैं हैरान इसलिए ज़्यादा हूँ कि जब आप सोलर सिस्टम, बीच में ये हुआ कि जी हम सोलर सिस्टम को डिस्करेज करेंगे, द रीज़न इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग सोलर सिस्टम पे चले गए और हमने तो IPPs को पेमेंट्स उतनी ही करनी है, तो वो सारिफीन जिनके पास सोलर सिस्टम नहीं है उन पर मजीद बोझ पड़ेगा। लेकिन दूसरी जानिब एक दफ़ा फिर हमने देखा ना सिर्फ सिंध और ना सिर्फ उसके साथ साथ पंजाब में भी सोलर सिस्टम को इंकरेज किया जा रहा है कि सब्सिडी भी देंगे, बैंक्स में लोन भी देंगे। ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हैं इस पर भी आगे चल के ज़रा बात करेंगे। लेकिन असल में जो वजूहात जो कि बार बार कहा जा रहा है कि IPPs के साथ जो मुआहदे हुए, जरा हम नजर हम डालते हैं कि इस वक्त कितना बड़ा धोखा और नुकसान हो रहा है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने जो बड़े इंकशाफात किए हैं कि IPPs बिजली की पैदावार के बगैर भी अरबों रुपए माहाना बटोर रही है, जिसमें बिजली की प्रोडक्शन ना भी हो, सिर्फ कैपेसिटी को लेकर वो अरबों रुपए ले रहे हैं। जो पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना वसूल कर रहे हैं।
IPPs میں 10% سے بھی کم کیپیسٹی پر اس وقت چل رہے ہیں جتنے بھی IPPs ہیں. ایک سال میں IPPs کو 1950 ارب روپے کی حکومتی ادائیگیاں ہوئی ہیں. صرف 3 ماہ میں IPPs کو 450 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی. کرپشن، بد انتظامی، نااہلی کے سبب ہمیں بجلی 60 روپے فی یونٹ مل رہی ہے اور فیصلہ جو پاور پلانٹس حکومت 28% نجی سیکٹر کی ملکیت ہے. تقریباً 52% جو ہے پاور پلانٹس حکومت کی جبکہ 28% نجی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو مہنگی بجلی کی جو بڑی وجہ ہے وہ کیپیسٹی چارجز، یعنی آپ کیپیسٹی ہے آپ کی کہ آپ 40 کلو واٹس بنا سکتے ہیں لیکن جو ہماری پروڈکشن آپ کو 20 کی ہو رہی ہے لیکن جو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے وہ فل کیپیسٹی کی کرنی ہے. یہ سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک دھوکہ ہے اور چیٹنگ ہے اور فراڈ ہے جس کا خمیازہ کوئی حکومتی شخصیت نہیں عام عوام بھگت رہی ہے. سرکاری کمپنیز بھی کیپیسٹی چارجز کی 48% کی حصے دار ہے. سرکاری بجلی کو بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں اور سرکاری کمپنیز کو گزشتہ 3 ماہ میں 169 ارب کین یو امیجن 169 ارب 36 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں. وابڈا کے 21 بجلی گھر 21% چلے لیکن 21 ارب 27 کروڑ روپے ادا کیے گئے. مالاکنڈ بجلی گھر جو ہے اس کو 40% کیپیسٹی پر چلا کر 20 کروڑ کے چارجز اس کو ادا کیے گئے. پنجاب کا قائد اعظم تھرمل 42% چلا لیکن 11 ارب 52 کروڑ روپے اس نے وصول کیے. یہ کہاں سے جا رہے ہیں؟ یہ آپ جو بجلی کے بل عوام دے رہی ہے یہ اس سے جا رہے ہیں. پھر پنجاب تھرمل پاور کمپنی کے بند بجلی گھر کو بغیر کسی یونٹ کے عوض 10 ارب 64 کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی ہے. اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. پنجاب کا قائد اعظم 16.3% چل کر 2 ارب 41 کروڑ پر لے گیا. وفاق کی 3 جنگوز کو صرف 5.8% چل کر 5 ارب 95 کروڑ کیپیسٹی چارجز لے لیے گئے. جھنگ اور بلو کی RNGG بجلی گھر 72% چلے لیکن 15 ارب 73 کروڑ کی وصولی کی گئی. اسی طرح سے جو چشمہ نیوکلیر کے 4 یونٹس 80% کیپیسٹی چلے لیکن 37 ارب 38 کروڑ روپے انہوں نے وصول کیے. چشمہ نیوکلیر پلانٹ کو سب سے زیادہ 64 ارب 23 کروڑ وصول کیے. کہ آپ تصور کریں کہ کہیں 50 ارب کہیں 30 ارب کہیں 64 ارب کہیں 12 ارب یہ جا رہی ہے جبکہ ان کی جو کیپیسٹی اس لیے کہ ان کی کیپیسٹی ہے. یہ IPPs کے معاہدے کیوں ہوئے، کس نے کیے اور یہ ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ماہر معاشی امور خرم حسین صاحب. خرم صاحب ذرا یہ معاملہ IPPs کا معاہدہ جہاں بات ہو بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں IPPs کے معاہدے غلط ہوئے تھے. IPPs کے ساتھ وہ جو کیپیسٹی کا سارا معاملہ ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے یہ معاہدے کن بنیادوں پہ ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے؟ کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ اس کا جو TORs کہہ لیجئے یا جو بھی چیز نکات کے لیے معاہدے غلط بنیادوں پر ہوئے تھے؟ غلط اور صحیح کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ایک ایشو ہے جو ہماری انڈسٹری کی ایک سیکشن جو ہے وہ اس کو ایک کیمپین بنا کے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کوئی ملک کے فائدے کی بات نہیں ہو رہی. یہ بیسکلی ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری اور دوسرا پاور جنریشن سیکٹرز، 2 انڈسٹری کے جو سیکٹرز ہیں ان کے درمیان میں آپس کی ایک لڑائی چل رہی ہے. دیٹس آل. ان معاہدوں کو اگر ہم لوگ ہائنڈ سائٹ میں دیکھیں اور کہیں 10 سال پہلے اس معاہدے میں یہ چیز ایسے نہیں ویسے ہونی چاہیے تھی، بائی آل مینس اس کو کر سکتے ہیں ہم لوگ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، جس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ IPPs کو کیپیسٹی پیمنٹس کیوں ملتی ہیں، یہی چیز تمام پارٹیز، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو 94 میں یا PMLN ہو لیٹ 90s میں یا PMLN دوبارہ 2014 15 16 کے ٹائم میں یا PTI کی حکومت 2019 کے بعد، ان پاور جنریشن میں ان سب نے کیپیسٹی پیمنٹس پہ منظوری دی ہے اپنی. تو میرے خیال میں اب اتنے سالوں بعد آ کے انگلیاں اٹھانا
काउंटर नहीं प्रोडक्टिव सर, है। अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया ना खुर्रम हुसैन साहब, ये भी तो देखिए ना कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। और दूसरी बात ये कि आप समझते हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं ये दुरुस्त है कि अगर आप बनवा तो रहे हैं कि जी आपने हमें 20 किलोवाट बना दें, लेकिन चूंकि आप बना सकते हैं 100 पैसे आप हमसे 100 के लेते रहे। नादिया, आप अगर किराए के घर में रहती हैं तो आप क्या अपने लैंडलॉर्ड को ये बता सकती हैं कि मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रही हूं तो उस 1 महीने जिसमें मैं घर में नहीं रहूंगी उस 1 महीने का किराया मैं नहीं पे करूंगी? कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स नॉट। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। हम लोग जो भी किराए के घर में रहते हैं, अगर आप 1 महीने की, ऑफ कोर्स यू कांट ना, तो इट्स द एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी कैपेसिटी पेमेंट्स का जो है। और आई अंडरस्टैंड कि लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि अगर हम बिजली नहीं ले रहे तो फिर पे क्यों कर रहे हैं, लेकिन जिसने वो इन्वेस्टमेंट की है उसका मौक़िफ़ यहाँ पे ये होता है कि मुझे आप इजाजत बाय लॉ दे रहे हैं कि सिर्फ एक बायर को मैं बेच सकता हूँ बिजली, और वो है हुकूमत पाकिस्तान, सिर्फ एक, और कोई बायर अलाउड नहीं है उनको अपनी बिजली बेचने के लिए। और जब वो बायर खरीदे या ना खरीदे, मैंने तो अपने डेट पेमेंट्स जो हैं, जो मैंने कर्जे लिए हुए हैं इन ऑर्डर टू सेट अप माय प्लांट, वो तो मैंने पे करनी है, वो तो वहां तो वो पेमेंट्स तो नहीं रुकेंगी। अच्छा खुर्रम हुसैन साहब, ये ठीक है आपकी बात, चलें आप एप्टेमा की बात कर लें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें, बट जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है वो भी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जी जो मुआहदे हैं वो रिन्यू होने चाहिए, आप बुलाएं, चाहे वो चाइनीज के हों, चाइना के हों, या फिर यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट या लोगों के हों, उनको बता के बिठाएं कि जी हम इतनी पेमेंट नहीं कर सकते, इनको रिन्यू करें। तो इज इट पॉसिबल? जी पॉसिबल तो है, ठीक है, पॉसिबल बहुत चीजें होती हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त रास्ता है? और इसके जो असरात होंगे पाकिस्तान के ऊपर वो क्या होंगे, ये सवाल भी साथ साथ पूछने चाहिए। और मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर समझते हैं कि वो उनकी इतनी समझ है इन चीज़ों की, तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये आसपा उनकी अकल क्या बता रही है कि इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है तो उनको फिर इस किस्म की हिदायत नहीं देनी चाहिए कि इसके नुकसानदेह असरात क्या होंगे। ठीक है, मोमेंटरली शायद हम लोग बिजली में कमी लाने, बिजली की कीमत में कमी लाने में थोड़ा सा सक्सीड हो जाए, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना वो समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हो भी जाए, लेकिन उसकी वजह से जो नुकसान है वो हम लोग अगले 40 साल के लिए भुगतते रहे, तो इज इट वर्थ इट? आई थिंक यहाँ पे एक शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की जा रही है मेरे ख्याल में। यहाँ पे वो नुकसान क्या हो सकता है, वो नुकसान क्या है, जरा उसको भी इलैबोरेट कर दें। नादिया, ये एक डिफॉल्ट के लेवल तक का इवेंट होगा, खास तौर पे जहां पे आप अगर चाइनीज गवर्नमेंट से कहेंगे कि भाई जो आपके सॉवरेन प्रोजेक्ट्स हैं उनको अब हमने रीस्केड्यूल करना है। ये 2021 में चाइनीज गवर्नमेंट से पूछा गया था, पीटीआई गवर्नमेंट ने पूछा था और उनको वाज़े तौर पे मना कर दिया गया था। ठीक है, अब दोबारा अगर आप कर रहे हैं और आप अगर जबरदस्ती ये करेंगे तो दिस इज अ डिफॉल्ट लेवल इवेंट। और इसके असरात जो हैं, फिर जैसे आपने देख लें कि रिको डिक के केस में क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ, कि एक केस के साथ उन्होंने जब थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की तो उल्टा पलट के 10 अरब डॉलर की पाकिस्तान के ऊपर एक लायबिलिटी बन गई थी, क्योंकि वो इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट था। ये भी उसी तरह के इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड है। इट्स पॉसिबल। ठीक है, मुझे लास्ट जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि बिजली के बिल जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा मसला है और ये हुकूमत वक्त के लिए भी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। अभी तो आना शुरू होंगे बिल तो आवाम की वजीद चीखें निकलेंगी। उवैस लगारी साहब जो कि पावर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं जब IMF से किस्त मिल जाएगी तो बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। ये कैसे होगी? ये भी अब फजूल बात है। ठीक है, आई थिंक ज्यादातर जो बिजली महंगी हो रही है उसकी मेन बुनियादी वजह तो है डिवैल्यूएशन। ठीक है, आप डॉलर टर्म्स में निकाल दें कि आज आप पर यूनिट क्या पे कर रहे हैं और कंपेयर कर दें कि 10 साल या 15 साल पहले आप क्या पे कर रहे थे, तकरीबन एक ही कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस भी अगर आप अभी देख लेंगे पर लीटर आपको डॉलर टर्म्स में कितना पड़ रहा है और 2010 में कितना पड़ रहा था, तकरीबन एक ही होगी। ज्यादातर जो इम्पैक्ट आया है वो आपकी डिवैल्यूएशन का है और उसकी वजह। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब। हम यहाँ पर बात कर रहे थे बिल्कुल एक नई और डिफरेंट बात इस वक्त हमारे सामने आई है, जो कि माहिर माशी उमर खुर्रम हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये जो IPPs है 2021 में PTI के दौर में इनको रिन्यू करने की बात की गई थी कि जी आप इसको जरा रिकंसीडर कर लें, हम इतनी पेमेंट नहीं कर सकते, या उनका चेक किया गया होगा तो वहां से मना हो गया था। और अगर हम इस लेवल पर जाते हैं तो फिर जो है वो डिफॉल्टर के उसमें आ जाते हैं, जो कि हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा
اور بڑا سیریس قسم کا حکومت کے آگے مسئلہ ہے. تو لیٹس سی. اور جو ویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کی قسط مل جائے گی تو پھر بجلی مہنگی نہیں سستی ہو جائے گی. یہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک لالی پاپ ہے کہ اس میں کوئی حقیقت ہے. خرم صاحب تو اس کو فضول بات قرار دے رہے. آنے والے وقت میں اس میں بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. نادیم مرزا کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.